Hello students, I am Puni from Prab Kirpa classes. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 करेंगे। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई शुड वी अवॉइड स्टैंडिंग क्लोज टू ए ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट व्हाइल ही और शी इज कफिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, some people fear that vaccines can be dangerous as it contains microbes itself. Please discuss and remove the fear. Question number 3 है, what is fermentation? Fourth है, name the preservatives used in kitchen on daily basis. Fifth है, what is the commercial use of yeast? Question number 6 है, whether we should use antibiotics in cold and flu. Question number 7 है, what is pasteurization? 8th है, why oil is used while making mango pickles? Next है, name the vaccine which is used against tuberculosis. Next है, what is nitrogen fixation? Next है, what is nitrogen cycle? Next है, viruses also infect animals. Give examples. Question number 13th है, a disease that can spread through direct contact with infected person. Give example. Next है, define pathogens. How do they enter our body? Question number 15th है, which microorganism is the cause of malaria? Next है, name few diseases caused by viruses. Question number 17th है, write name of some diseases caused by bacteria. Question number 18th है, which microorganisms are unicellular? Next है, name some multicellular microorganisms. और next है, what are antibodies? तो start करते हैं। Question number 1, why should we avoid standing close to a tuberculosis patient while he or she is coughing? Answer. Tuberculosis is also known as TB. It is an infectious disease usually caused by Mycobacterium tuberculosis bacteria. This disease mainly affects the lungs but also can affect any other organ such as kidney, spine and brain. It is an airborne disease which easily spreads when the infected person coughs, spits, speaks or sneezes. So we should avoid standing close to a tuberculosis patient when he or she is coughing. We may add that TB is a curable and preventable disease. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि जब एक ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट कफिंग कर रहा हो यानी कि खांस रहा हो तो हमें उसके पास खड़े होने से अवॉइड करना चाहिए। इसका आंसर है कि ट्यूबरक्लोसिस को टीबी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है। ये डिसीज जो है टीबी की, ये लंग्स को आमतौर पर इफेक्ट करती है, पर ये दूसरे ऑर्गन्स जैसे किडनी, स्पाइन और ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकती है। ये एयरबॉर्न डिसीज है यानी कि हवा से हवा में फैलने वाली डिसीज है विच इजीली स्प्रेड्स। ये आसानी से फैल सकती है जब व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है, स्पिट करता है, बोलता है या स्नीज करता है। इसलिए हमें ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के पास खड़े होने को अवॉइड करना चाहिए जब वह खांस रहा हो। एक बात ये ध्यान देने वाली है कि टीबी जो है ये एक क्योरेबल यानी कि इसका इलाज है, ये प्रिवेंटेबल डिसीज है। ये आपके सामने पिक्चर दी हुई है कि बैक्टीरिया के कारण ट्यूबरक्लोसिस होती है। टीबी को एंटीबायोटिक्स के साथ क्योर कर सकते हैं, और अगर किसी पर्सन को लंग का टीबी है तो उससे टीबी स्प्रेड हो सकती है जब वह खांस रहा है या स्नीज रहा है या छाऊ कर रहा है या लाफ या सिंक कर रहा है। टीबी जो है वह क्लॉथ शेयरिंग यूटेंसिल्स, किसिंग, हगिंग के कारण नहीं फैलती। ठीक है। नेक्स्ट है, some people fear that vaccines can be dangerous as it contains microbes itself. Please discuss and remove the fear. Answer.
A vaccine is a biological preparation which provides immunity against one or several diseases. It is prepared from dead or weakened microbes. Vaccines, on entering our body, produce suitable antibodies. These antibodies remain in the body and fight with the harmful microbes in our body. Moreover, vaccines contain dead or weakened microbes, so they are not harmful for the human beings. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि कुछ लोगों के मन में डर होता है कि वैक्सीन जो है वो डेंजरस हो सकती है, क्योंकि वैक्सीन में खुद में छोटे छोटे माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इस पॉइंट को हमने डिस्कस करना है और लोगों के मन में जो शंका है उसको दूर करना है। आंसर है कि वैक्सीन जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जो हमें बहुत सी डिसीजेज से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये जो वैक्सीन होती है ये डेड और वीकेंड माइक्रोब से बनी हुई होती है। आजकल जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये जो कोरोना वायरस की कोविड-19 वैक्सीन भी हैं वो भी डेड और वीकेंड वायरस माइक्रोब से बनी हुई है। ठीक है, ये जो वैक्सीन हैं या ये जब हमारी बॉडी में एंटर करती हैं तो वो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं, और ये जो एंटीबॉडीज हैं ये हमारे शरीर में रहती हैं, और जब हार्मफुल माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो उसके साथ ये जो एंटीबॉडीज हैं वो फाइट करती हैं। ये वैक्सीन जो होती हैं ये डेड और वीकेंड माइक्रोब से बनी हुई होती हैं, इसलिए ये ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल नहीं होती। Next, what is fermentation? Answer. The process of conversion of sugar into alcohol by yeast is called fermentation. अब क्वेश्चन है कि फर्मेंटेशन किसे कहते हैं। ये आपके सामने फर्मेंटेशन का प्रोसेस दिखाया गया है कि जब शुगर को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, इट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। हियर ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन दिस प्रोसेस। Next, name the preservatives used in kitchen on daily basis. Answer. Vinegar and oil are common preservatives used in kitchen on daily basis. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि किचन में डेली बेसिस पर कौन से प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं। इसका आंसर है विनेगर ऑयल। विनेगर एंड ऑयल जो है वो आमतौर पर डेली यूज में होता है। ऑयल में आप जैसे अगर नॉर्थ इंडिया में है तो मस्टर्ड ऑयल आमतौर पर ज्यादा यूज होता है, अगर आप साउथ इंडिया में है तो सीसम जिसे तिल का तेल कहते हैं वो कॉमन प्रिजर्वेटिव के तौर पर अचार वगैरह में पिकल्स में यूज होता है। Next, what is the commercial use of yeast? Answer. Baking bread and manufacturing of alcoholic drinks are the commercial uses of yeast. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि यीस्ट का कमर्शियल यूज क्या है। जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यीस्ट के टू मेन यूजेस हैं। एक तो ये ब्रेड बेकिंग के काम में यानी कि जो बेकरी इंडस्ट्री उसमें यूज होता है, और दूसरा अल्कोहलिक ड्रिंक्स जैसे वाइन बियर इसको बनाने के लिए यीस्ट काम में आता है। Next, whether we should use antibiotics in cold and flu. Answer. We should not use antibiotics in cold and flu because these diseases are caused by viruses. Antibiotics are not effective against viruses. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि अगर किसी को कोल्ड या फ्लू हो तो उसको एंटीबायोटिक्स यूज करनी चाहिए। तो आंसर है नहीं, हमें एंटीबायोटिक्स को कोल्ड एंड फ्लू में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोल्ड एंड फ्लू जो है वो वायरसेस के कारण होता है, और वायरसेस के केस में एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं होते। ये आपके सामने पिक्चर है कि एंटीबायोटिक्स कह रहे हैं आई डू नॉट केयर कोल्ड, कि एंटीबायोटिक्स क्योर कोल्ड को क्योर नहीं करते। Question number 7 है, what is pasteurization? Answer. It is the process in which milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds, killing most of the bacteria and then cooling quickly to a very low temperature. Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि पास्चराइजेशन किसे कहते हैं। ये आपके सामने पास्चराइजेशन का प्रोसेस दिखाया गया है कि सबसे पहले जो फ्रेश मिल्क है उसको 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है, और इससे जो बहुत से बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं, और फिर बाद में
जो मिल्क है उसको एकदम बहुत ही लो टेम्परेचर पर क्विकली कूल किया जाता है और इससे पेस्चराइज्ड मिल्क तैयार हो जाता है, जो कि बॉइलिंग के बिना भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब जो पेस्चराइज्ड मिल्क है इसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स नहीं है। Question number 8 है why oil is used while making macro pickles? Answer: oil acts as a barrier and prevents the bacteria from attacking the pickle and spoiling it. It increases its shelf life. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि कौन सा कि मैंगो का अचार बनाना हो, आम का अचार, तो उसमें ऑयल को क्यों यूज किया जाता है। आंसर है कि ऑयल एक बैरियर की तरह एक्ट करता है और बैक्टीरिया को अचार पर अटैक करने से रोकता है और अचार खराब नहीं होता। इससे जो पिकल की शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। ये आपके सामने पिक्चर है। आमतौर पर जो पिकल्स हैं उनको बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल या सीसम तिल का तेल का यूज होता है। Next, name the vaccine which is used against tuberculosis. Answer: BCG vaccine is used against tuberculosis. कौन सी वैक्सीन को टीबी के केस में यूज किया जाता है। टीबी के केस में बीसीजी वैक्सीन को यूज किया जाता है। Question number 10 है what is nitrogen fixation? Answer: our atmosphere has 78% nitrogen gas, but it cannot be utilized directly by the plants or animals. Nitrogen fixation is a process by which nitrogen in the atmosphere is converted into ammonia or related nitrogenous compounds in soil. Nitrogen can be fixed by lightning, azotobacter bacteria, rhizobium bacteria, and certain blue-green algae. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं। आंसर है कि हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% गैस जो है वो नाइट्रोजन है, पर प्लांट्स या एनिमल्स इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है और नाइट्रोजन ये जो फिक्स की जाती है ये लाइटनिंग, आसमान में जो बिजली आती है उसमें से, उसके द्वारा, या अजोटोबैक्टर बैक्टीरिया या रिजोबियम बैक्टीरिया या सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गा के द्वारा ये नाइट्रोजन फिक्स हो सकती है। ये आपके सामने दिखाया गया है कि रिजोबियम बैक्टीरिया रेस्ट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम crops. 11th है what is nitrogen cycle? Answer: a process by which the amount of nitrogen remains constant in the atmosphere is called nitrogen cycle. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन साइकिल किसे कहते हैं। ये आपके सामने नाइट्रोजन साइकिल दिखाया गया है कि नाइट्रोजन कैसे कंज्यूम हो रही है और बाद में एक साइकिल के रूप में वो कांस्टेंट रहती है। इस तरह जो नाइट्रोजन साइकिल है ये एक साइकिल है जिसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा जो है, अमाउंट है, वो एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहती है। Next, viruses also infect animals. Give examples. Answer: viruses can also cause diseases in the animals. For example, foot and mouth disease in cattle, swine flu in pigs, and bird flu in birds is caused by viruses. क्वेश्चन है कि वायरसेस जो है वो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। आंसर है कि वायरसेस जो है एनिमल्स में भी डिसीजेस का कारण बनते हैं। उसकी एग्जांपल है फुट एंड माउथ डिसीज, जो हमने पिछले अपना वीडियो किया था उसमें हमने ये पॉइंट काफ़ी डिस्कस किया था। और जो वायरस हैं वो पिग्स में स्वाइन फ्लू और बर्ड्स में बर्ड फ्लू के कारण भी बनते हैं। नेक्स्ट है Question number 13 है a disease that can spread through direct contact with infected person. Give example. Answer: chickenpox and ringworm are diseases that can spread through direct contact with infected person. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि कोई कुछ एग्जांपल दें जिसमें कि इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से कोई डिसीज हो सकती है। उसकी एग्जांपल्स हैं ये सामने चिकन पॉक्स और ये रिंगवर्म, 2 डिसीजेज हैं जो कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो सकती हैं। Question number 14 है define pathogens. How do they enter our body? Answer:
Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants, and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens. Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink, or the food we eat. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि पैथोजेंस किसे कहते हैं और ये हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स, पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डिसीज का कारण भी बनते हैं। वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके कारण ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स या एनिमल्स में डिसीज आती है उनको पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं? वो एंटर करते हैं जब हम सांस लेते हैं या हम जब पानी पीते हैं, वाटर वो ड्रिंक, या हम कुछ खाना खाते हैं, तो उस समय ये जो पैथोजेंस हैं हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और ये जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तब भी ये हमारे शरीर में ट्रांसमिट हो जाते हैं। ये आपके सामने एक काफ़ी डिटेल में पैथोजेंस के बारे में कि पैथोजेंस जो हैं वो वायरसेस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई या प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, और वो कौन कौन सी डिसीजेज का कारण बनते हैं उसके बारे में ये डिटेल पिक्चर आपके सामने दी हुई है। आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। Next है, which microorganism is the cause of malaria? Answer: Malaria is caused by Plasmodium parasites. You get malaria when a female Anopheles mosquito infected with parasites bites you and transfers the parasite to you. Plasmodia are protozoa. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण मलेरिया होता है। आंसर है कि मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है। किसी भी पर्सन को मलेरिया तब होता है जब एक मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है, जो इन्फेक्टेड हो, जिसके पास प्लाज्मोडियम पैरासाइट हो, वो जब किसी पर्सन को बाइट करता है और जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट को पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, तो इससे पर्सन को मलेरिया हो सकता है। ये आपके सामने मलेरिया की एग्जांपल है। मलेरिया के बारे में कुछ लिटरेचर है कि मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो बोर्न ब्लड डिसीज है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होती है। जब एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करता है पर्सन को, तब ये हो सकती है। ठीक है, इसके कारण जो है ये रेड ब्लड कार्पोसल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं मलेरिया के कारण। 16th question है, name few diseases caused by viruses. Answer: COVID-19, hepatitis A and B, AIDS, polio, common cold and flu. सबसे पहले आप क्वेश्चन है कि वायरसेस के कारण होने वाली कुछ डिसीजेज के नाम लीजिए। जैसे आप जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो सबसे पहले आ गया कोविड-19, फिर हेपेटाइटिस ए, बी, एड्स, पोलियो, कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। ये आम तौर पर वायरस के द्वारा की जाने वाली प्रॉब्लम्स हैं, डिसीजेज हैं। ये वायरसेस के द्वारा की जाने वाली और बैक्टीरिया, फंजाई के द्वारा कुछ की जाने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में एक थोड़ा सी पिक्चर आपके सामने दी हुई है। Next है, write name of some diseases caused by bacteria. Answer: tuberculosis, cholera और diphtheria. ये बैक्टीरिया के द्वारा जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसीज होती हैं, वो है ट्यूबरक्लोसिस, कोलरा, डिप्थीरिया। और इसके बारे में कुछ और लिखा हुआ है कि बहुत ही कम जो बैक्टीरिया होते हैं वो इलनेस का कारण बनते हैं, बल्कि सिर्फ 1% जो होते हैं बैक्टीरिया, उनके कारण ही डिसीज फैलती हैं। Next है, which microorganisms are unicellular? Answer: amoeba, bacteria, paramecium. ये आपके सामने पिक्चर दी हुई है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। ये आ गया अमीबा की फोटो, ये पिक्चर है बैक्टीरिया की और ये पैरामीशियम की। Next है, name some multicellular microorganisms. Answer: all species of animals, land plants and most fungi are multicellular organisms. अब
आपके सामने कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल्स हैं, जैसे ह्यूमंस, बर्ड्स, कैट्स, डॉग, सभी तरह के मतलब कि एनिमल्स हो गए, लैंड प्लांट्स हो गए, और मोस्ट ऑफ द फंजाई, वो सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स हैं। Next time, what are antibodies? Answer. Antibodies are specialized Y-shaped proteins used by the immune system to identify and neutralize foreign objects, whether they are pathogenic bacteria, viruses, fungi, or parasites. When a disease-carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि एंटीबॉडीज किसे कहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल कोविड-19 बहुत ही फैला हुआ है, कोरोना वायरस जिसको बोलते हैं। तो आपने सुना होगा कि इसकी वैक्सीन मार्केट में आ गई है, और अगर हम उस वैक्सीनेशन को करवा लेते हैं तो ये शरीर में एंटीबॉडीज क्रिएट करती हैं। अब क्वेश्चन है कि एंटीबॉडीज है क्या। ये स्पेशलाइज्ड वाई शेप्ड प्रोटीन है। ये आपके सामने ये जो पिक्चर दिखाई गई, ये वाई शेप्ड एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। These are used by the immune system to identify and neutralize foreign objects. जब हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटर करता है तो ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये उनको आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज करती हैं। ये जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, यानी कि डिसीज काजिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या पैरासाइट्स हो सकते हैं। जब कोई भी पैथोजन यानी कि डिसीज कारिंग माइक्रोब जब भी हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारा शरीर जो है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, ताकि वो ये जो पैथोजन है उनसे फाइट कर सके। ये जो एंटीबॉडी और एंटीजन क्या है, ये जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हमारे शरीर में एंटर होते हैं, इनका आपस में रिलेशन ऐसा होता है जैसे लॉक एंड की का होता है। ये आप देख रहे हैं ना, ये एंटीबॉडी है। जब ये जो पैथोजेनिक मटेरियल यानी कि ये जो एंटीजन है, फॉरेन ऑब्जेक्ट जब हमारे शरीर में एंटर करता है तो ये एक तरह की, ये सपोज करो की है और ये लॉक है। जब ये जो एंटीजन यहाँ पर एंटर करता है तो ये जो एंटीबॉडी है ये इसको लॉक की तरह पकड़ लेती है। जैसे सपोज करो एक लॉक है और की है, एंटीजन एक की तरह है, और जब हम कोई चाबी घुमाते हैं तो वो पकड़ लेता है, मतलब चाबी बाहर नहीं निकल पाती। इसी तरह जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन को पकड़ लेती है और उसको बाहर निकलने नहीं देती। ये उसको लॉक एंड की तरह रिलेशन इनका आपस में होता है। ये देखिए आप क्लियर किया हुआ है। ईच एंटीबॉडी बाइंड्स टू ए स्पेसिफिक एंटीजन एंड इंटरेक्शन सिमिलर टू ए लॉक एंड की। इनका रिलेशन एक लॉक एंड की तरह होता है। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। Thank you.